आज हम कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। द मोशन ऑफ अ बॉडी restricted under some physical under some physical conditions or when they are governed by some mathematical relation. Rules. The motion is called constrained motion. जैसे अगर हम देखें आपके पास से फॉर एग्जांपल एक कोई ऐसा सरफेस है where this one is the horizontal level and this one is the vertical level, and you have one block over it. इस टाइप का आपके पास एक ब्लॉक है m मास का, on which you are applying some force F. So no matter whatever be the direction of the force F, चाहे वो ये ग्रीन कलर वाले फोर्स की डायरेक्शन में हो या ऐसी डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा हो या फिर वो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा हो, in each of these cases the mass will always move in the horizontal direction only. ये आपका नीचे की तरफ कभी नहीं जा सकता. Although the force F2 अगर आप उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा लगाएंगे, so in that case the mass can be lifted upward in the vertical direction but it can never go in the downward direction. नीचे की तरफ कभी भी ये हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर नहीं जा सकता. So this is one of the physical condition. जब आप ये फोर्स कंटिन्यूसली लगाएंगे, so after some time the mass will be here, और मास का तब मोशन कैसा होगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन. और ये नीचे की तरफ तब क्यों जाएगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली इफ यू हैव अ इंक्लाइंड सरफेस और अ वेज सरफेस लाइक दिस on which the inclined surface is fixed and it can't move, in that case also if you have one block over here, then this block is constrained to move along this inclined direction only. जो आपका ब्लॉक है ना, वो हमेशा इस इंक्लाइन डायरेक्शन में ही मूव कर सकता है, वो इस इंक्लाइन के अंदर की तरफ नहीं मूव कर पाएगा. और ये नीचे की तरफ क्यों मूव करेगा, बिकॉज ऑफ द component of the gravitational force which is acting on the block. If this is mg and the angle of the slope is theta, then the force which is acting along the incline will be mg sin theta, and the force which is acting perpendicular to the inclined plane will be mg cos theta. So because of the presence of this mg sin theta force which is acting along the inclined plane, the block will move along the inclined direction. समझ में आया? और एग्जाम्पल देखते हैं. If you have a pulley and mass system where this is the you have one pulley over this, इस टाइप की एक सर्कुलर पुली है आपके पास, एंड रोप इज पासिंग थ्रू दिस ऑल ओवर द पुली, one in this direction and another is going in this direction. Sorry. Now you have two different masses connected to the ends of the rope. One is your mass m1 and another one is your mass m2, and let us assume that m2 is greater than m1. So in that case if you will see clearly, जो आपका m2 मास है, इसका मास ज़्यादा होने की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, से फॉर एग्जांपल अगर x मोशन नीचे की तरफ जाता है, सो उस केस में जो आपका m1 मास है वो सेम डिस्टेंस x से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डिस्प्लेसमेंट x से ऊपर की तरफ मूव करेगा. एंड इफ़ यू विल डिफरेंशिएट दिस डिस्प्लेसमेंट x, आई एम कंसिडरिंग दैट x इज़ व्हाट, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक. तो अगर आप इस डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, differentiating x with respect to time, तो आपको dx by dt क्या देगा, velocity. and since x2 is equal to x1, so v2 will be equal to v1, तो उनकी दोनों की velocities भी क्या होंगी, equal होंगी. again differentiating with respect to time, आपके पास क्या आएगा, acceleration भी दोनों की क्या आएंगी, equal. so this is also one of the constraint relation. और ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज यू आर एज्यूमिंग दैट योर स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग या आइडियल रोप का मतलब क्या होता है, दैट फर्स्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ इनएक्सटेंसिबल.
ये खींचेगी नहीं, दिस इज इनएक्सटेंसिबल, एंड द स्ट्रिंग विल ऑलवेज रिमेन टॉट. String is always tight. So under these two assumptions, the velocity and the acceleration of the blocks will be same. एक example और देखते हैं. Let us say that you have one wedge block which can now move in the horizontal direction because it is placed over a horizontal ground surface. And on the inclined surface of this wedge, you have one mass m. तो अगर हम इसका दोनों का ही अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम मास m का बनाएंगे सो दैट विल बी लाइक दिस, वेयर द m g फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे. वन कंपोनेंट विल बी अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन विच विल बी mg sin theta, and another one will be in the this perpendicular direction which will be mg cos theta. अब हम साथ में हमारा वेज का भी फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं, सो माय वेज इज समथिंग लाइक दिस. where this angle is theta, and let us say that the mass of the wedge is m2. So again this will be having one gravitational force m2g in downward direction. Now because of the normal reaction between the ground and the block m2, it will experience one normal reaction force on the lower surface. Let this is n2, and because of the contact between the mass m and the wedge m2, there will be one contact force between them also. Let that contact force is n1. So that contact force is always of pushing nature, so that n1 will be acting in this direction and n1 will be acting in this direction. Now the components of n1 will act on the wedge in horizontal direction, as well as in vertical downward direction. Because of the presence of this horizontal component of the normal reaction force, this wedge will move in horizontal direction. ये पीछे की तरफ मूव करेगा. Let the acceleration of the wedge with respect to ground is a1. What a1 represents? This is the acceleration of wedge किसके रिस्पेक्ट में? With respect to ground. ठीक है, वो a1 है. Now let us also assume that the acceleration of the small mass m downward the inclined plane is a2. तो ये a2 क्या रिप्रेजेंट करे? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक किसके सरफेस पे रखा है? वेज के सरफेस पे. तो इसकी जो एक्सेलरेशन भी जो आप काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो किसके रिस्पेक्ट में होगी? वेज के रिस्पेक्ट में. सो a2 विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज. जहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो हमारा वेज जो है ना, ये खुद क्या है? मूविंग. वेज इज itself moving. तो जो आपने एक्सेलरेशन ब्लॉक की जो निकाली है वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकाली है, जिसकी वजह से ये इसकी रिलेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी या रिलेटिव मोशन कहलाएगा. अगर आपको ब्लॉक का एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेलरेशन. लेट अस सी हाउ वी विल डू दैट. एक्सेलरेशन a2 आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. इसके दो कंपोनेंट्स होंगे. वन कंपोनेंट विल बी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वन कंपोनेंट विल बी अलोंग द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन. इफ दिस इज एक्सेलरेशन a2, this angle is theta, then the horizontal component will be, let's say for example it is ax, and the vertical direction it will be ay. So here I am representing ax is the, let us say that ax is the net acceleration of the block with respect to ground. So net acceleration of block with respect to ground. अब मैं डायरेक्टली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे ए एक्स का रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन का एक्स कॉम्पोनेंट विच इज एक्टिंग अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन. सो ए एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच? a2 cos थीटा विच इज एक्टिंग इन द राइट हैंड साइड. और ये जिस सरफेस पे है वो कौन सा सरफेस है आपका? ये वाला सरफेस है.
और इस वाले सरफेस के, ये वाला सरफेस किसका था, वेज का था, वेज का ये वाला सरफेस जो आपका ऑलरेडी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ब्लॉक की फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन कितनी आएगी, a2 cos थीटा माइनस a1। जिस सरफेस पे जा रहे हैं वो सरफेस भी अगर पीछे की तरफ जा रहे हैं तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको मोशन किस तरह दिखेगा वेज का, a2 cos थीटा माइनस a1। सिमिलरली द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक with respect to ground in the y direction in the downward direction will be directly given by a2 sin theta, and because of this the net acceleration or the total acceleration will be given by the relation ax square plus ay square to the root। ये आपने रिलेशन वेक्टर्स में पढ़ा था, समझ आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो भी आपका मोशन है ब्लॉक का या किसी भी बॉडी का, वो अगर किसी भी फिजिकल कंस्ट्रेंट की वजह से या फिजिकल कंडीशन की वजह से अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है तो हम उसको बोलेंगे कंस्ट्रेंट मोशन है वो, ठीक है। सो लेट अस सी व्हाट आर द कंस्ट्रेंट रिलेशंस। अगर हम कंस्ट्रेंट रिलेशंस की बात करें तो कंस्ट्रेंट रिलेशन की डेफिनेशन सबसे पहले आप नोट करेंगे, इट स्टेट्स दैट दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशंस, these are the mathematical relations by which motion of two or more bodies are related। जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ का मोशन जो है उनके बीच में अगर आप रिलेशन कोई फॉर्म करते हैं देन दैट रिलेशन विल बी नोन एज कंस्ट्रेंट रिलेशन। जैसे देखते हैं एक बहुत छोटे एग्जांपल, यू हैव वन हॉरिजॉन्टल ground on which you have one block, this one which is your block number B, and we have one another block A which is your block number A, both of which are tied by one string and some force F is being applied on the block B। आइए हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास इस टाइप का कोई एक सिस्टम है। Now due to the application of the external force F on the block B, the block B will move in the direction of the force by, say for example, some distance x। Now since we are assuming that this string is ideal string, this is your ideal string which is inextensible, तो जो string है वो extend नहीं हो सकती। So जितना displacement block B का होगा उतना ही displacement string और block B के connection का होगा। So this connection point will also move by a distance x। द स्ट्रिंग इज आइडियल, तो कोई भी इसका पॉइंट जो है वो एक्सटेंड तो नहीं होगा। सो सिमिलरली दिस पॉइंट विच इज कनेक्शन पॉइंट बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द पॉइंट ब्लॉक ए, दिस विल ऑल्सो मूव बाय द डिस्टेंस एक्स, एंड लेट अस से दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एक्स और ए इज वाई। सो यू कैन डेफिनेटली से दैट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू वाई। इफ यू विल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई, so then you will get velocity of A is equal to velocity of B। And similarly if you will again differentiate this expression with respect to time, तो आपको क्या मिलेगा, acceleration of block A is equal to acceleration of block B। So these three relations are known as your constraint relations। समझ में आया? So whenever you want to develop any constraint relation of the velocity or acceleration, you first try to relate the displacement of the bodies and differentiate them with respect to the time। सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट्स को देखने हैं, जैसा भी आपका डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डेफिनेटली वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के रिलेशंस मिल जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं अपना, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इन विच यू हैव वन वॉल एंड अ ग्राउंड सरफेस एंड अ ladder is placed on this something like in this orientation। ऐसी आपके पास एक लैडर रखी हुई है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द लैडर इज L एंड लेट द एंड पॉइंट्स आर A एंड B। Now at some instant it is making some random angle theta। Now what you are asked to find, you have to find the velocity of end A when rod is inclined at theta with horizontal। जब वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा तो उस टाइम पे आपको एंड ए का
वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो लेट अस से दैट एट द गिवन इंस्टेंट दिस डिस्टेंस इज x and let this distance is y. So we may say that relation between x and y will be given by the Pythagoras theorem, which will give you x square plus y square is equal to L square. If you will differentiate this with respect to time, differentiating with respect to time, so x square का डेरिवेटिव कितना आएगा 2x इंटू dx by dt प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2y इंटू dy by dt विल गिव यू लेंथ स्क्वायर. लेंथ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आएगा 0. सो नाउ हेयर dx by dt आपको क्या प्रेजेंट कर रहे हैं. अगर आपका जो लैडर है वो फॉल करती है, सो b पॉइंट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड a पॉइंट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो जैसे जैसे टाइम आपका प्रोग्रेस करेगा, योर लेंथ x विल इंक्रीज एंड द लेंथ y विल डिक्रीज. सो एज टाइम इंक्रीजेज, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, x तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन y क्या होगा, डिक्रीज. अच्छा, dx by dt आपको क्या देगा, dx by dt विल टेल यू द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट b. सो dx by dt will give you the velocity of the point b, and similarly dy by dt will give you the velocity of point a, but y is of decreasing nature, so minus dy by dt will give you the velocity of the point a, where in the right hand side we have the velocity of the point b and in the downward direction we have the velocity of the point a. So putting these two values in this expression, what you will get, 2x into dx by dt will give you the velocity of the point b plus 2y into dy by dt will give you the velocity of the point a with a negative sign. This is equal to 0. Solving this, you will get the velocity of point a is equal to vb into x upon y. Now again, if you will see in this triangle, for this triangle, what will the value of x upon y. x क्या है आपका बेस और y क्या है परपेंडिकुलर. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो क्या है x अपॉन y, वो आपको क्या देगा, cot थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो cot थीटा विल बी द वैल्यू ऑफ x अपॉन y. सो यहाँ पे x अपॉन y की जगह हम क्या लिख लेंगे, cot थीटा. सो द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट a विल बिकम इक्वल टू vb इंटू cot थीटा. दिस विल बी द relation which is known as the constraint relation between the points a and b. समझ में आया. तो यहाँ पे हमने किया क्या, x और y के जो भी हमारे पॉइंट्स है a और b, उनका डिस्प्लेसमेंट निकाला और उनके डिस्प्लेसमेंट को हमने रिलेट किया, जो हमारी सबसे पहली इक्वेशन थी, दिस वन. फिर हमने इसको डिफरेंशिएट करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है. नाउ देयर इज़ वन अनदर मेथड टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम. लेट अस सी दैट. उसके लिए हम अपना डायग्राम एक बार दोबारा बना लेते हैं, एंड दिस इज ऑल्टरनेटिव मेथड. सो दिस वाज योर ग्राउंड एंड वॉल on which you had a ladder like this, and the ladder was making some random angle theta with this one, and you have the different points A and B, and the length of the rod is L, and let the end B is moving in the right hand side with some velocity v naught. So हमें A पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है. यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है, दिस इज़ योर रिजिड रॉड, दिस वन इज़ योर रिजिड रॉड. और रिजिड का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द रॉड will always remain same, will always remain same. मतलब जो आपकी रॉड है उसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते, और अगर आप अपनी रॉड को डिफॉर्म नहीं कर सकते,
सो रॉड के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के जो डिस्प्लेसमेंट जो है या उन दोनों के दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। अगर दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा देन डेफिनेटली यू कैन से दैट द कॉम्पोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और द कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड विल ऑल्सो रिमेन द सेम। मतलब अगर मैं ये एज्यूम करूँ कि मेरा जो पॉइंट ए है उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी ए, सो इसका कॉम्पोनेंट जो हमारी लेंथ के अलॉन्ग आएगा दिस कॉम्पोनेंट, एंड सिमिलरली वी नॉट वेलोसिटी जो बी एंड की थी इसका कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड, दीज टू कॉम्पोनेंट शुड ऑल्सो भी इक्वल। कौन से कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक तो वी का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड इन दिस डायरेक्शन एंड वी नॉट का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, बोथ ऑफ दीज शुड ऑल्सो भी सेम। तो ये कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से आएंगे, by simple geometry you can see that the component of the velocity v naught which is of the end b along the length of the rod will be v naught cos theta, this one will be v naught cos theta, and similarly जो हमारा a पॉइंट का जो velocity था va उसका लेंथ के अलॉन्ग जो component आएगा velocity का that will be va sin theta, that one will be va sin theta. So we may write that for L to be constant you have VA sin theta is equal to VB cos theta. So VA will be equal to VB into cos theta upon sin theta, where cos theta upon sin theta is cot theta. So velocity of end A is equal to VB into cot theta. This is the same relation which was obtained here also. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना इम्पोर्टेंट नोट क्या लिखेंगे, that for 2 points on rigid body, या तो हम rigid body लिख लें या फिर हम लिख लें if their separation is constant। रिजिड बॉडी का मतलब ही क्या है कि वहाँ पे जो भी आपके दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का सेपरेशन या उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। देन ड्यूरिंग मोशन their velocity components along the line joining these points will always remain equal। समझ आया, ठीक है। सो इस तरीके से हम अलग अलग अपने कंस्ट्रेंट रिलेशंस बना के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।